Good morning, all my dear student standard 12. Differentiation. Questions may be 2006 3 mark. If f dash x double dash x is equal to minus fx, where fx is a continuous double differentiable and gx is equal to f dash x, means f dash x is equal to gx. If fx by 2 whole square gx by 2 whole square दिया and f5 is equal to 5, then f10 a is equal to 0, b is equal to 5, c is equal to 10 and d is equal to 25. Means given f double derivative minus fx, this is the right down d by dx f dash x is equal to minus fx, d by dx f dash x is equal to minus fx, where f dash x is equal to gx. आपको पता है f dash x means d by dx gx is equal to minus fx. It means d by f dash x in place of gx. Now first derivative of gx g dash x is equal to minus fx. ये है इक्वेशन मेरा फर्स्ट, means g dash x minus fx, g dash x by 2 is equal to minus f x by 2 into 1 by 2. g dash 1 g dash derivative x by 2 derivative 1 by 2. Now minus f x by 2 into 1 by 2. ये इक्वेशन बन गया हमारे पास, मीन्स g dash x is equal to minus fx. और क्या मिला हमको? gx is equal to f dash x. अब इक्वेशन क्या दिया है आपको? f x by 2 whole square plus g x by 2 whole square. अब इसको आप डेरिवेट करो, डेरिवेट करते हैं x पावर n 2 x by 2, फिर f का फंक्शन f डैश x by 2 डेरिवेट 1 by 2 प्लस 2 g x by 2, फिर g डैश x by 2 into 1 by 2. g dash x by 2 in place of f dash x minus fx, means fx by 2 and f dash x by 2 in place of gx. अगर हम इसको वैल्यू रखेंगे तो f dash x is equal to प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर है, डेरिवेशन लगाएंगे gx is equal to f dash x, gx is equal to f dash x by 2 and f dash x by 2 is equal to g dash x is equal to minus fx. It means फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज कांस्टेंट. किसी का डेरिवेटिव 0 हो जाए तो फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है. मीन्स f5 is equal to 5, then f10 हो या 100 हो, वैल्यू 5 ही होगी. दैट आंसर इज डी. हमें कैसे पता चला? जैसे मान लो fx is equal to 10, तो f dash x is equal to 0. A function may be the derivative 0
that is a constant function. A constant function, f5 may be the value 5, then f10 may be the value 5, या f100 may be the value 5. ओके, किसी भी फंक्शन का अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो वैल्यू डोमेन चेंज होगा लेकिन रेंज में भी द सेम, रेंज कभी चेंज नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ y फंक्शन ऑफ x, y इसमें है x में, एंड log x plus y equal to 2xy, then the value of f dash 0, y dash 0 is, y dash 0 means x equal to 0. Now log x plus y is equal to 2xy and x is equal to 0. So then 0 plus y 0, log y is equal to 0 कहाँ मिलता है, log 1 पे, y की वैल्यू 1. Now checking point, derivate function y with respect to, क्या चेक करना है, dy by dx at 0 to 1. This is implicit function, derivate करो dy dx log x plus y is equal to 2x. log derivate 1 upon x, x plus y, फिर dy by dx 1 plus dy by dx 2x dy by dx plus 2y. चलो 1 upon x plus y plus 1 upon x plus y dy by dx, अरेंज करो 2x dy by dx plus 2y. dy by dx मेजर वन साइड, देखो मैंने कुछ नहीं किया, पहले x इक्वल टू 0, y वैल्यू 1 फाइंड आउट, देन दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन. नाउ डेरिवेट, फाइंड वैल्यू, इस पर चेक करनी है f डैश 0, y डैश 0, dy by dx 0, f x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 1. ये हमने अपनी तरफ से लिखा. dy by dx log x डेरिवेट 1 upon x, 1 plus dy by dx, here multiplication rule 2x dy by dx plus 2y dx डेरिवेट 1. अब देखो 1 upon x plus y plus 1 upon x plus y dy by dx is equal to 2x dy by dx 2y. dy by dx measure one side, minus 2x dy by dx equal to 2y minus 1 upon x plus 1. dy by dx common, multiply 1 minus 2x x plus y upon x plus y, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2y x plus y minus 1 upon x plus y, both side x plus y cancel. dy by dx 2xy plus 2y square minus 1 upon 1 minus 2x square minus 2xy. अब वैल्यू निकालो, dy by dx at 0 to 1 means x value 0, then 0, y value 1 plus 2 minus 1, 1 minus 0 minus 2, here 2 will be 1 upon minus 1, then answer minus 1. B answer. इतना अच्छा क्वेश्चन था.
क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें से कौन सा रिलेशन मीन्स डबल डेरिवेटिव है क्या? ओके, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव what in the four relations may be satisfied x square plus y square equal to first all of this equation means circle may be derivate two times y double dash means second derivative तक जाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव x square plus y square equal to 1, x square डेरिवेटिव 2x 2y y dash equal to 0, 2 में भी डिवाइड x plus y y dash equal to 0। now second derivative, this is the first derivative, second derivative, x derivative 1 here multiplication, y का derivative नहीं करेंगे that is y double dash plus y dash, फिर y का derivative y dash equal to 0। now y double dash plus y dash square plus 1 equal to 0। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन है, y dash plus y dash plus 1 equal to 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी। आपको क्वेश्चन को 2 टाइम्स डेरिवेट करना था। For all students, your NCERT textbook, chapter 5, last second question, miscellaneous के अंदर मल्टी डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट में भी प्रेजेंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स cos x 6 minus 1 0 p square p q, p is constant means derivative of p is 0, then dqy by dx square fx at x equal to 0, p plus p square p plus p cube then independent of p। तो जब तक हम डेरिवेट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या है। नाउ fx is equal to x square sin x cos x 6 minus 1 0 p square p cube। now f dash x 3 बार डेरिवेट कर रहे हैं बेटा, देखो डेरिवेटिव फंक्शन में इफ फंक्शन में भी प्रेजेंस ऑफ डिटरमिनेंट, फर्स्ट वर्ग में सिर्फ हम फर्स्ट रूट प्लस सेकंड में सेकंड रूट, थर्ड में थर्ड रूट। तो फर्स्ट 2x cos x minus sin x 6 minus 1 0 p square p cube, इसका डेरिवेट नहीं करेंगे। अब सेकंड फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो करना है, सेकंड स्टेप में सेकंड रो मींस x स्क्वायर sin x cos x 6 डेरिवेट 0 1 डेरिवेट 0 0 डेरिवेट 0 p स्क्वायर p क्यूब। थर्ड स्टेप में थर्ड रो डेरिवेट x स्क्वायर sin x cos x 6 minus 1 0 p so p0 and p0, p जो कांस्टेंट पहले ही हो चुका है। डिटरमिनेंट डेरिवेट आज सबसे पहले फर्स्ट रो का करेंगे एक बार, सेकंड एंड थर्ड आर नॉट अफेक्टेड। सेकंड स्टेप में सेकंड रो बोथ 0, थर्ड रो बोथ 0, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट एंड वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट 0। क्यों? क्योंकि फॉर एनी रो और कॉलम ईच टर्म 0, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0, प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट। सिमिलरली f dash सेकंड डेरिवेटिव 2
cos s minus sin s, sin minus cos s, 6 minus 1 0, p स्क्वायर p क्यूब। आगे सब इसी तरह से जीरो हो जाएंगे, सिंक पोर्शन में जीरो हो जाएगा। f 3 बार डेरिवेट किया, दैट इज 0 sin cos s, cos minus minus sin s, 6 minus 1 0, p स्क्वायर p। अब इसकी वैल्यू, इसको तो साथ ही नहीं करना है, माइनस माइनस प्लस cos s, रो का ऑपरेशन 6p क्यूब, 6p क्यूब, ये जीरो हो जाएगा, प्लस sin x, रो का ऑपरेशन 6p स्क्वायर, सिक्स पी स्क्वायर कॉमन, p cos x प्लस sin x, वैल्यू तो देखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। एट एक्स इक्वल टू 0 मीन्स 0 cos 0 वैल्यू माइनस 1, sin 0 0, 6 minus 1 0, p स्क्वायर p क्यूब। सिक्स p स्क्वायर है p क्यूब। माइनस 1 रो का कैंसर, 6p क्यूब मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ p, कोई रिलेशन नहीं आएगा, ये सिर्फ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ p। बेटा यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, तभी तो आंसर सेट नहीं हुआ। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6। क्वेश्चन में x क्यूब था, 3x स्क्वायर 6x 6, ऊपर डेरिवेट हियर 6, p क्यूब ले लिया हमने लास्ट में, p क्यूब 6 minus 6 that 0 means independent of p, that is also x क्यूब था। if y square equal to ps, y square equal to ps is a polynomial of constant degree 3 means 3 degree है इसकी, means derivative of 3 times, then 2 d by dx y cube d2y by dx square, ये रिलेशन में p थर्ड डेरिवेटिव प्लस p फर्स्ट डेरिवेटिव, p सेकेंड डेरिवेटिव इंटू p थर्ड डेरिवेटिव, p एंड p थर्ड डेरिवेटिव का कांस्टेंट, पहले डेरिवेट करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू ps, फर्स्ट डेरिवेटिव 2y y1 इक्वल टू p डैश x, 2y y1 इक्वल टू p डैश x। इसके बाद हम इसका सेकेंड डेरिवेट करेंगे, सेकेंड डेरिवेट 2y
y1 क्या करेंगे तो y2 प्लस 2y1 स्क्वायर 2y1 स्क्वायर इज p डबल डैश x p डबल डैश x हियर y क्यूब यहाँ क्या है y क्यूब मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड तो y क्यूब लाना है मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड y स्क्वायर 2y क्यूब y क्यूब बाद देखो y बन गई प्लस 2y स्क्वायर y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p डबल डैश x y स्क्वायर। इसको ये साइड दो 2y क्यूब y2 y स्क्वायर p डबल डैश x माइनस 2 y स्क्वायर वैल्यू y की क्या वैल्यू बेटा px 2 y स्क्वायर y1 होल स्क्वायर 2y क्यूब y2 y स्क्वायर p डैश x माइनस y स्क्वायर in place of 2 p x y1 स्क्वायर ये y स्क्वायर in place of p x सब्स्टिट्यूट करते हैं। It means 2y y2 2y1 square p double again derivate means y square multiply this value 2y square y1 p dash x y square यहाँ से थोड़ा रहेगा means y square second derivative of x minus 2 y y1 whole square तो y y1 whole square in place of हम वैल्यू रख सकते हैं p dash x upon 2 y square second derivative of x 2 p dash x upon 2 whole square 2y2 y2 is equal to y square p double dash x minus p dash x whole square था। अब इसको आप अलग से डेरिवेट करेंगे थर्ड डेरिवेट करते हैं d by dx क्वेश्चन में है 2 d by dx y cube y2 is equal to यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे 2y फिर y डेरिवेट y1 फिर सेकेंड डेरिवेट प्लस y स्क्वायर फिर ट्रिपल डेरिवेट x
यस फिर p सेकेंड डेरिवेटिव अपॉन p y बार 2y1 डैश फिर हो जाएगा p डैश यस इंटू p सेकेंड डेरिवेटिव प्लस y स्क्वायर p ट्रिपल डेरिवेटिव यस माइनस p x इंटू p, ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया y स्क्वायर p ट्रिपल डैश x। ओके y2 is d2y by dx स्क्वायर में भी सब्स्टिट्यूट